Hello friends, welcome in Emerging Trends in Electrical Engineering lecture series. Today we are going to start unit number 3, Smart City. This is our lecture number 10 of this lecture series and our today's topic is Smart City, presented by Pradnya Korode from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. The course outcome of the today's lecture is suggest the different electrical systems for smart city, and the learning outcomes are, after watching this video you will be able to understand what is smart city, and you will also know the core infrastructure elements of smart city. As in the previous lecture, we studied about smart substation, in which we understood what is smart substation, need and significance of distributed generation. Also, we studied the layout and components of smart substation and the different challenges in the smart substation. From these points, we conclude that smart substation identifies the faults more quickly and accurately, thereby providing more reasonable protection and control strategies for the power system. Now, let us start our today's lecture. In this session, we understand what is smart city. So, the concept of smart city is a very stable place for the dwellers. It is expected to be a place which meets all the basic needs what a dwellers aspires. स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट क्या बोलता है कि ये एक स्टेबल प्लेस प्रोवाइड करता है ड्वेलर्स को. ड्वेलर्स मतलब जो स्मार्ट सिटी में रहेंगे, मतलब जो भी पर्सन्स रहेंगे या फिर जो एनिमल्स रहेंगे, इन सबको जो एक स्टेबल प्लेस प्रोवाइड करेगा उसको बोलेंगे हम स्मार्ट सिटी. हम इसको डिफरेंट टाइप से भी अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं. एक पर्टिकुलर उसकी डेफिनेशन नहीं बन सकती है. It is expected to be a place which meets all the basic needs what a dwellers aspires. जो भी वो स्मार्ट सिटी में रहने वाले हैं उन सब की जो भी बेसिक नीड्स है वो सिटी फुलफिल करना चाहिए, उसको बोलेंगे हम स्मार्ट सिटी. Why a smart city? मतलब स्मार्ट सिटी क्यों जरूरी है हमको? Aiming to aspire every needs of the city dweller and ideally aiming to develop the entire ecosystem economically, physically, socially and institutionally. इसलिए हमको स्मार्ट सिटी की रिक्वायरमेंट है कि जो भी सिटी में ड्वेलर्स जो है उन सब की हम नीड्स जो है वो जो भी इकोसिस्टमली, इकोनॉमिकली, फिजिकली और सोशली और इंस्टीट्यूशनली उनकी जो नीड्स है वो फुलफिल कर सके. The objective to promote cities that provide a core infrastructure and give a decent quality of life to its citizen, a clean and sustainable environment. हमारे स्मार्ट सिटी का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? स्मार्ट सिटी को प्रमोट करना, उसमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वहाँ के जो सिटीजन है उनको सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये सब उनकी जरूरत है स्मार्ट सिटी की. सो द बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट सिटीज, मतलब स्मार्ट सिटी के क्या एडवांटेज रहेंगे? Smart city helps people to live, work and play while acquiring fewer resources. Creates most benefits for the people while minimizing the impacts. Connects the people. All types of facilities are available to the people, etc. So first one is the core infrastructure. The core infrastructure elements a smart city must include are as
follows. जो भी हमारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या फैसिलिटीज उनको होनी चाहिए हमारे इसमें, मतलब अगर हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो कौन सी फैसिलिटीज स्मार्ट सिटी में होनी चाहिए, तब जाके हम उसको बोलेंगे कि इसका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है। तो सबसे पहला है कि वहां पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए, एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सैनिटाइजेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, efficient urban mobility and public transport is also required, affordable housing and especially for the poor is very required for the citizens who lived in this city. Also robust IT connectivity and digitalization also required, good governance and citizen participation is must, safety and security of the citizens and particularly women, children and elderly peoples. हमारे जो भी सिटीजन्स रह रहे हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटी होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए उनकी, पर्टिकुलरली जो छोटे बच्चे हैं और जो भी एल्डरली मतलब एल्डरली पीपल है और वहाँ की जो महिलाएं हैं, इन सबको सेफ्टी होनी चाहिए उस सिटी में। एंड हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तब जाके हम क्या बोलेंगे, दिस सिटी इज अ स्मार्ट सिटी। एडिक्वेट वाटर सप्लाई में क्या आएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो भी पीने का पानी है उन पे प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपरली वो अच्छे तरीके का वाटर होना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए वाटर का, मतलब जो भी टॉक्सिन्स है उनको रिमूव कर देना चाहिए। तो मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर अच्छी तरीके से, जब सिटी के पीपल को मिलेगा तब जाके उनकी हेल्थ जो रहेगी वो अच्छी रहेंगी और वो अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और हमारे सिटी का अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि वहां पे एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए और अच्छी तरीके का वाटर उनको मिलना चाहिए। Also assured electricity supply, वहां पे 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहना चाहिए। डेवलपिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द वेरियस मोड्स सच एज सोलर प्लांट्स, डैम्स, वाइंड मिल्स, थर्मल पावर प्लांट्स एक्सेट्रा, मेंटेनेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स। तो यहाँ पे 24 आवर्स सप्लाई होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, तब जाके क्या होगी, वहां पे जो भी फैक्ट्रीज वगैरह है वो 24 घंटा उनका प्रोडक्शन कर पाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, सिटी का और डेवलपमेंट होगा, सिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये कब पॉसिबल होगा, जब उसमें वेरियस मोड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कनेक्टेड रहेगी, जैसे कि सोलर प्लांट से वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, डैम से, वाइंड मिल से, थर्मल पावर प्लांट से, और वहां पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स का मेंटेनेंस वगैरह प्रॉपर रहेगा तब। तो हमको देखना पड़ेगा कि स्मार्ट सिटी में हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं। Also सैनिटाइजेशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होना चाहिए। यूज ऑफ द वॉशरूम फॉर क्लीन एंड हाइजीन सैनिटाइजेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेट एंड ड्राई वेस्ट, जो भी हमारा अलग अलग गीला और सूखा कचरा अलग अलग उसका डिस्पोजल होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड ई वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन सब का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, तब जाके क्या होगी, अगर प्रॉपर इन सब का मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, उससे बीमारियां फैल सकती है। तो इसलिए ये सब का प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। एंटरटेनमेंट हब्स होने चाहिए, जैसे कि हाई क्वालिटी एंटरटेनिंग मॉल्स रहने चाहिए, सुपर मल्टीप्लेक्स थिएटर्स रहने चाहिए, ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग गार्डन्स होने चाहिए एंड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी होने चाहिए। Efficient urban mobility and public transport, proper planning and road flyovers, वहां पे स्मार्ट सिटी में प्रॉपर रोड होने चाहिए और फ्लाईओवर्स होने चाहिए और इन सब के बीच में प्रॉपर प्लानिंग भी जरूरी है।
Public transport such as buses, taxis, railways, metros, etc. इन सब का भी प्लानिंग रहना जरूरी है. एयर ट्रांसपोर्टेशन भी होना जरूरी है. Also, affordable housing. Those people who are living in this city should have the affordable housing facility. Low cost of land. वहाँ पे कम कीमत में उनको जमीन मिलनी चाहिए. अफोर्डेबल हाउसेस स्पेशली फॉर द पुअर. जो भी गरीब लोग हैं उनको मतलब अफोर्डेबल हाउसेस उनको मिलने चाहिए. लो रेट्स ऑफ टैक्सेस. टैक्सेस कम रहेंगे तो लोगों को आसानी से वो भर पाएंगे और उनको अच्छा रहेगा रहने के लिए सिटी में. हाउसिंग विथ हाई टेक फैसिलिटी and proper planning of the housing and societies. Facilities such as the recreation areas like parks, malls, theaters, auditorium, museum and zoos etc. हाउसिंग के साथ साथ उनको क्या फैसिलिटी होनी चाहिए कि वहां पे हाउसिंग के साथ साथ उनको पार्क्स, मॉल्स और थिएटर्स वगैरह भी मिलने चाहिए. तब जाके हम क्या बोलेंगे, दिस इज अवर स्मार्ट सिटी. रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी एंड डिजिटलाइजेशन. जैसे कि हमको पता है दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में, क्योंकि हमको भी पता है हम बिना मोबाइल, बिना वाईफाई, बिना नेटवर्क, बिना इंटरनेट के बिना अधूरे महसूस करते हैं आजकल के जमाने में. तो इसलिए कम्युनिकेशन फैसिलिटीज फॉर द पीपल प्रॉपर होनी चाहिए. Availability of the mobile tower range to the remotely areas of the city. मतलब जो भी दूर दूर तक के जो एरियाज है हर एरिया में प्रॉपरली मोबाइल टावर की रेंज पहुंचनी चाहिए. डिजिटलाइजेशन लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी, वाईफाई फैसिलिटी एक्सेट्रा. इंटरनेट फैसिलिटी और वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए. ऑल्सो गुड गवर्नेंस एंड द सिटीजन पार्टिसिपेशन. इसमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए. प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड जिला परिषद कंट्रोल ओवर द फोर्सेस लाइक पुलिस एंड द मिलिटरी. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Assuring safety and security of the women, children and the elderly people. जो भी वुमन और चिल्ड्रेन और एल्डरली पीपल है उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए उनकी. ऑल्सो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए. एंड एश्योरिंग द कंट्रोल ओवर द राइट्स एंड अदर वायलेंस एक्सेट्रा. हेल्थ एंड एजुकेशन ऑल्सो प्लेज इम्पोर्टेंट रोल. इसमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए. एंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ हाईली एजुकेटेड डॉक्टर and availability of the educational institution within the smart city. Educational institution भी जरूरी है. So conclusion of the today's topic: smart city. Smart cities are already in development and they will quickly expand. A smarter future is on the way and there will be a more advantages than disadvantage in the smart cities for the whole societies. Assignment for the today's lecture: state the core infrastructure elements in a smart city. Views satisfied by the today's lecture are as shown in this table. Thank you for watching this video and keep learning.